Kendriya Vidyalaya Sangathan is a premier organization dedicated to school education, working under Ministry of Education, Government of India. At present, the organization is administering about more than 1200 schools located in different parts of India. And at present, these schools collectively they are catering to the educational needs of more than 1 million students, and most of whom they are the wards of transferable central government employees. But besides catering to the educational needs of wards of transferable central government employees, these schools they also cater to the educational needs of many state government employees and also of floating population. These schools over the years have established a reputation of being efficient schools, and the performance of the students in board examination in class 10th and 12th has been improving consistently over the years. And in society, Kendriya Vidyalayas, they have been able to create a niche for themselves. नमस्कार, मैं तरुण प्रकाश शर्मा, ट्रेनिंग एसोसिएट, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आंचलिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर। मैं अपने शिक्षक साथियों की वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों में समस्याओं को देखते हुए छोटे छोटे चंक्स में कुछ टॉपिक्स भूगोल के संबंध में उन पर अपनी एक लेक्चर सीरीज बना रहा हूं। Namaste. I'm Uma Maheshwari, Training Associate English, KVSZ at Gwalior. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निवेदन में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण किसी भी कंपनी या किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन इस विधा में बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं, खासकर हिंदी भाषा में। तो मित्रों, मेरी कोशिश रहेगी कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण पर कुछ अच्छे वीडियोस आपको दे सकूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। नमस्ते, मैं शाजिला, ट्रेनिंग एसोसिएट बायोलॉजी, केवीएस IIT ग्वालियर। नमस्कार, मैं जेपी सिंह, प्रशिक्षण सहायक प्राथमिक IIT ग्वालियर से। आज मैं बात करूंगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। समावेशी शिक्षा क्या है, ये क्यों आवश्यक है। Good morning all of you. Myself Joseph K, Training Associate, Kendriya Vidyalaya Sangathan Zonal Institute of Education Training, Gwalior. Hello everyone. Myself Rupa Chaturvedi, librarian, KVS IIT Gwalior. और ये जो लेक्चर सीरीज है, इसमें आज हमारा पहला विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक संरचना। और उसके छोटे छोटे जो चंक्स हमने बनाए हैं, उसमें सबसे पहला भाग हमारा है, उसमें हम भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, खास तौर से उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं के संदर्भ में आज बताएंगे। तो मैं आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पहले बताता हूँ। तो उसके संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो भारत के उत्तरी भाग में फैली हुई ये लंबी विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। पामीर की गांठ से लेकर के अराकान योमा बर्मा के साथ जाकर के ये लंबी श्रृंखला फैली हुई है। वहाँ जाकर के ये फिर नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और भारत के विभिन्न प्रांतों, दक्षिण हमारे जो पूर्वोत्तर के प्रांत हैं, उनको उनसे होती हुई नीचे आकर के अंडमान निकोबार श्रृंखला का निर्माण करती है। The journey called life surprises with choices and challenges at every corner, forcing us to change, to solve problems and make decisions. We need someone who can give us solace, comfort, peace of mind, or make us feel happy and relaxed. Help us to realize our goals and achieve maximum in life. Who is that someone who can do all this unbiased without attaching any stigma? A professional counselor who possesses all the skills needed for counseling can surely help us.
Good morning, children. Today, we will learn about an important topic in class 12th economics. How to calculate national income by income method. We have already discussed national income has three phases. That is as per value added or product method, second by income earned by the different sectors, and thirdly by expenditure method. आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि बहुत सारी बातें तो हम लर्निंग या खुद सेल्फ अकरिंग लर्निंग से भी तो सीख सकते हैं, फिर ट्रेनिंग की जरूरत कंपनी को या किसी भी संस्थान को उसके कर्मचारियों को ट्रेन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है और खासकर जब लर्निंग कर सकते हैं तब ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। Biological terminologies are always a cause of worry for our students. When the teachers come here for training also, they do raise this issue. Of course, we are making some easy memorizing techniques like mnemonics and making rhymes, poems with these terms and all. But there are certain terminologies which are very, very similar but entirely different meaning. Now, I have listed out few and explanation of that. Let us see that. जैसा हम जानते हैं हमारे क्लासरूम्स में भिन्न भिन्न वातावरण से विद्यार्थी आते हैं, उनकी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सभी की आवश्यकता के अनुसार सभी तरह के बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अवसर प्रदान करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता ही आखिर हमें क्यों है, क्योंकि उन सभी को अपने आप को सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने के लिए, उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अचीव करने के लिए ये सब आवश्यक है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है। एक ओवरऑल व्यू देखें तो डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर 20 बच्चों में से एक बच्चा हमें ऐसा ज़रूर मिलता है जिसमें किसी न किसी तरीके की माइल्ड और सीवियर काइंड की डिसेबिलिटीज़ मिलती हैं। अब भारत सरकार ने इस ओर समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अवेलेबल कराए हैं जो इस तरह के बच्चों के अधिकारों के लिए प्रयास किया है, जिन्होंने पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC एक्ट 1974, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसे हम PWD एक्ट के नाम से भी जानते हैं। Today I will talk about mental wellness. Anxiety cases are surged out during this lockdown. Sharing of trauma and grief is the first step towards healing. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि असेसमेंट अर्थात आकलन, एक अच्छा आकलन कैसा होना चाहिए और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट। तो दोस्तों, असेसमेंट की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात जो आकलन के लिए जरूरी है वो है कि एक अच्छा असेसमेंट वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है कि जिस विषय या जिस कॉन्सेप्ट का हम टेस्ट ले रहे हैं या उस पर असेसमेंट ले रहे हैं, उसी में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सभी को प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। Quizizz.com से कैसे एक बढ़िया क्विज बना सकते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग भी ये यूज कर लीजिएगा। Quizizz.com का ऐप हम मोबाइल पर डाउनलोड करना है या कंप्यूटर से है तो हम उसमें रजिस्टर करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से वो ओपन करना है। अभी मेरा तो ये ओपन है। हम प्रोफाइल का पेज पर आया तो इधर लेफ्ट साइड में क्रिएट पर क्लिक करना है, क्रिएट क्विज। तब ओपन करेंगे, क्विज का एक नाम दे सकता है। मान लीजिए मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिया है, टॉपिक दे दिया और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी हो हम सेलेक्ट करना है। मोर ऑप्शंस भी है
ये तो इकोनॉमिक्स का, चूंकि ये इधर नहीं दिया है, मैंने यहाँ अदर क्लिक कर लिया, नेक्स्ट। तो ये जो श्रृंखलाओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है हिमालय का, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल का भाग मूल रूप से आता है। पंजाब हिमालय का भाग भी इसके अंतर्गत आता है। और जब इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में है जो काराकोरम श्रृंखला है। ये काराकोरम ये यहाँ फैली हुई है और ये पूरी पर्वत श्रृंखला जिसमें जास्कर माउंटेन, पीर पंजाल रेंज और इधर धौलाधार रेंज, ये प्रमुख श्रृंखलाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं और ये फैली हुई है। Today, I'm going to discuss about the topic action research. Kurt Lewin, a social psychologist and educator whose work on action research was developed throughout the 1940s in the United States. And he is credited with coining the term action research to describe the work that did not separate the investigation from the action needed to solve the problem. So, the work and the investigation go hand in hand. It typically involves small-scale investigative projects in the teacher's own classroom or in her school whenever she finds a problem. So, it's an activity that connects the doing of teaching with the questioning of research. So the investigation is going on, research is going on, and side by side the action is also going on, and the intervention, the new techniques adopting or the intervention is also going on, and finding out the learning outcome from the children. The state GST collected by the state, including Delhi and Pondicherry, because these two are having the assembly also. State government on intrastate sale. UT, Union Territory Goods and Service Tax, collected by the Union Territories not having state legislatures. Delhi and Pondicherry are coming in the second category. What are the benefits? Of course, objectives and benefits are more or less related. Reduction of black money. People were asked to deposit their currency notes, and as a result, 15.3 lakh crores of the 15.41 lakh crores demonetized were deposited with the banking system. Actually, it was a rupee symbol. Before that, 15.30, it was a symbol of rupee, but now it is not displayed in this computer. That is this rupee sign.